Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is exact differential equation. So here we will study the definition of exact differential equation, then the examples on exact differential equation. After that we will study the equations reducible to the exact equation and their examples. So what is the exact differential equation? So the equation m dx plus n dy equal to 0 is said to be an exact differential equation if it satisfies the condition, that is del m by del y is equal to del n by del x, that is partial derivative of m with respect to y, this is equal to partial derivative of n with respect to x, where del m by del y denotes the differential coefficient of m and with respect to y and keeping x constant, and similarly del n by del y is the differential coefficient of n with respect to x keeping the y constant, because here we are doing the partial derivative, so that other term will be the constant. So first note is that the equation m dx plus n dy this is equal to 0 is exact if this condition holds, that is del m by del y is equal to del n by del x, and the solution of this equation is given by integration of m dx taking y as constant plus integration of terms in n not containing x into dy is equal to c. So second note is that if there is no term in n independent of x, then the solution is given by integral m dx taking y as constant which is equal to c. So यहाँ पे जो exact differential equation क्या होगी, अगर हमारे पास equation इस टाइप की होगी, हम कहेंगे कि वो एग्जैक्ट कब होगी, अगर वो ये कंडीशन क्या करे, सेटिस्फाई करे, मींस अगर जो उसमें m है और जो n है, जब उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y लेंगे m का, और इसी तरीके से n का विथ रेस्पेक्ट टू x लेंगे, और अगर उन दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है. सो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है होगा, जब भी हमें कोई इक्वेशन दी होगी इस टाइप की और वो एग्जैक्ट भी होगी, उस केस में उसका सोल्यूशन निकालने का जो फॉर्मूला है that is m dx taking y as constant with integration then plus integration terms in n not containing x into dy is equal to c. So अगर हमारे पास क्या होगा, कोई भी टर्म जो n में है वो इंडिपेंडेंट होगा x का, उस केस में जो सोल्यूशन होगा, so if there is no term in n independent of x then the solution is given by, उस केस में ये टर्म सिर्फ रहेगी और ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. so that is integration m dx that taking y as constant this is equal to c. So now we will solve one example on this type. So first example is solve 5x4 plus 3x square y square minus 2xy cube whole dx plus 2x cube y minus 3x square y square minus 5y4 dy this is equal to 0. सो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, बहुत सिंपल है. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हम देखेंगे, हमारे पास इसको अगर हम कंपेयर करेंगे उस इक्वेशन से एम डी एक्स से, हम ऐसे लिख लेते हैं कंपेयरिंग above equation, or I will write it as equation number 1, comparing first with m dx plus n dy equal to 0. सो यहाँ से हमारे पास m किसकी इक्वल आ जाएगा, m आएगा हमारे पास 5x रेज पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई क्यूब. सिमिलरली जो हमारे पास n होगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 2x क्यूब साथ में y देन माइनस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 5y रेजिंग पावर 4. सो अब हमने क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है. क्यों, बिकॉज वी नो दैट अगर इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, ये इस टाइप की इक्वेशन एग्जैक्ट के लिए हमारे पास जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है, सो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन उसकी क्या होती है, डेल एम बाई डेल वाई दिस इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स. ओके, सो मीन्स ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ही हम कहेंगे ये क्या होगा, ये एग्जैक्ट होगी ये अबो इक्वेशन. सो जो ये कंडीशन होती है ये बेसिकली क्या होती है, हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है. ओके, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है, और सिमिलरली एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 हमारी सफिशिएंट कंडीशन होती है.
सो यहाँ से हम अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे डेल एम बाई, सो डेल एम बाई डेल वाई मीन्स इसको हमने क्या करना है, पार्शियली डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू वाई। सो जब हम वाई के साथ करेंगे एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इट विल बिकम 6 एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 6 xy स्क्वेयर। सिमिलरली डेल एन बाई डेल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ये भी आ जाएगा 6 x स्क्वेयर वाई माइनस 6 xy स्क्वेयर। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि दैट डेल एम बाई डेल वाई दिस इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। सो यहाँ से सबसे पहले पता क्या चल गया हमें, जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, दिस इज एग्जैक्ट। अब हमने क्या निकालना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। सो सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन टेकिंग वाई एज कांस्टेंट, then mdx plus integration, that is terms not terms, it is terms in of n not containing x, terms of n not containing x इंटू डी वाई दिस इज इक्वल टू सी। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो सबसे पहले एम डी एक्स ले लेंगे। तो यहाँ पे एम कितना है हमारे पास, 5x4 प्लस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 2xy³ इंटू डी एक्स। सो टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, वाई क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है। सो इसमें वाई कॉन्स्टेंट लेके चलना, प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। सो मीन जो एन की वो टर्म्स लेनी है जिसमें क्या होगा हमारे पास एक्स नहीं होगा। अब देखेंगे जैसे ये वाला टर्म है फर्स्ट टर्म, इसमें भी एक्स है, सेकंड टर्म देखेंगे इसमें भी एक्स है, मगर जो थर्ड टर्म है उसमें एक्स नहीं है। सो हमें सिर्फ वही टर्म्स लेनी है जिनमें एक्स नहीं होगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे आएगा -5y⁴ इंटू डी वाई दिस इज इक्वल टू सी। सो अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे और वही इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे टेकिंग y एज कांस्टेंट हो जाएगा। सो इट विल बिकम 5x⁵ डिवाइडेड बाई 5, देन इट इज 3 टाइम्स x³ इंटू वाई स्क्वेयर, देन इट इज -2x² 2 इंटू y³, बिकॉज y इधर कांस्टेंट है तो उसको सेम ऐसे ही रखेंगे। सिमिलरली ये हो जाएगा यहाँ से -5 टाइम्स y⁵ डिवाइडेड बाई 5 दिस इज इक्वल टू कैपिटल C। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x⁵, देन इधर हो गया हमारे पास नेक्स्ट 5 और 5 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, ये अगेन 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा x³ माइनस x² देन इट इज़ -y5 दिस इज इक्वल टू C। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं। So next example is solve e⁻y plus 1 cos x dx plus e⁻y sin x dy this is equal to 0. So same हम यहाँ पे पहले compare करेंगे। So I will write here. So comparing name it as equation first. Comparing first with mdx and mdx plus ndy this is equal to 0. So from here m किसके इक्वल आ जाएगा, e⁻y plus 1 इंटू cos x, और n हमारे पास आ जाएगा e⁻y इंटू साइन ऑफ x। सो ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई। सो अब हमने क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। सो डेल m बाई डेल वाई दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा ई वाई इंटू कॉस एक्स। सिमिलरली डेल n बाई डेल जो x होगा वो हमारे पास आएगा ई वाई इंटू कॉस ऑफ x। सो ये दोनों सेम है। सो वी विल राइट हियर देयरफॉर डेल m बाई डेल y दिस इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x, देयरफॉर द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। सो इक्वेशन क्या आ गई यहाँ से, ये एग्जैक्ट बन गई। अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। सो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे हम लेते हैं, एम डी एक्स, देन इट इज द terms of n not containing x, terms of n not containing x, then it is dy this is equal to c. Okay, and here y is constant. So now
फ्रॉम हेयर वी विल राइट इंटीग्रेशन m कितना है, e रेज पावर y प्लस 1 whole cos of x into dx, then it is plus terms of n not containing x, तो ऐसी कोई भी टर्म नहीं है, तो मीन्स ये वाला जो टर्म हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0. सो दिस इज इक्वल टू c, और वी कैन राइट देयरफॉर इंटीग्रेशन e रेज पावर y it is plus 1 into cos of x dx, this is equal to c. so इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से हमारे पास टेकिंग y कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है, हमारा y क्या है इसमें, कांस्टेंट है, तो y वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, तो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा, इट विल बिकम e रेज पावर y प्लस 1 इंटू ये cos x की बन जाएगी आपकी इंटीग्रेशन sin x, एंड दिस इज इक्वल टू c. सो विच इज़ द आंसर. सो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस क्या करने हैं, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट इज द इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट इक्वेशन. तो मीन्स अगर हमारे पास जो इक्वेशन, जैसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं होगी, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं सो दैट कि वो क्या करे, वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाए. सो द डिफरेंशियल इक्वेशंस विच आर नॉट एग्जैक्ट कैन बी मेड एग्जैक्ट आफ्टर मल्टीप्लाइड बाय ए suitable फैक्टर नोन एज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो क्या है, वो नॉन एग्जैक्ट है, उसको हम क्या करेंगे, एक सूटेबल फैक्टर से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीपल करेंगे, और वो फैक्टर क्या होगा, वो फंक्शन होगा किसका, एक्स और वाई का. उस फैक्टर को हम बेसिकली कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो हम जब उसको मल्टीपल करेंगे उस फैक्टर से, वहाँ से वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस होके एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी. सो एक एग्जाम्पल देखिए कैसे, कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0. सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से. तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई y और n हो गया माइनस x के पास. सो इसके बाद हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है. सो डेल m बाई डेल y वो किसके इक्वल हो गया, 1. सिमिलरली डेल n बाई डेल x किसके इक्वल हो गया, माइनस 1. सो ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मीन्स नेसेसरी कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट नहीं है. सो इट इज़ नॉन एग्जैक्ट. अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम इसके साथ एक मल्टीप्लाई, मतलब हम एक सूटेबल फैक्टर इसका क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं. तो ये बेसिकली बाई इंस्पेक्शन से होता है, जो मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगी. सो ये जो, जैसे हमने इस इक्वेशन को, जो इस सेकेंड इक्वेशन है, इसको हमने, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मल्टीपल कर दिया 1 बाई एक्स स्क्वेयर से. तो यहाँ से आ गया y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और वहाँ पे, यहाँ पे भी x था और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर था, वो एक x और एक x कैंसिल हुआ, ये आया 1 बाई एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0. सो अब ये अगेन m डी एक्स प्लस n डी वाई की फॉर्म में है, इक्वल टू 0 के फॉर्म में. सो अगेन m मैंने ले लिया, m हो गया y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, और n इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई x. सो अगेन हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y लेंगे और n का विथ रेस्पेक्ट टू x ले लेंगे. सो जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y और x के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों की दोनों जो वैल्यूज है वो इक्वल आ रही है. सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये डेल m बाई डेल वाई, दिस इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x, और इक्वेशन क्या हो गई, अब हमारे पास एग्जैक्ट हो गई, और जो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर था दैट वाज 1 बाई एक्स स्क्वेयर. सो नेक्स्ट इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स बाय इंस्पेक्शन. सो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, और जो इस टाइप की अगर आपके पास इक्वेशंस गिवन होगी, उसके लिए आपने डायरेक्टली ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स लगा लेने, और उनका जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल आएगा दैट विल बी दीज टर्म्स. सो जैसे ग्रुप ऑफ टर्म्स कैसे, अगर हमारे पास इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन है x डी वाई माइनस वाई डी एक्स, सो उस केस में हमारे पास ये 1 बाई एक्स स्क्वेयर के भी फॉर्म में आ सकता है. सिमिलरली ये 1 बाई वाई स्क्वेयर के भी फॉर्म में ले सकते हैं हम, जो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको किस तरीके से करना है. सो ये इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होंगे 1 बाई एक्स वाई और 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. ओके, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी, जैसे इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल जब हम इसको एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स. तो इसको u बाई v का फॉर्मूला है ये. सो सिमिलरली अगर हमारे पास ये वाली टर्म होगी, इसको y स्क्वेयर से हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो ये हमारे पास आएगी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इट इज़ ओनली बेसिकली दिस इज़ वाई स्क्वेयर ओनली, तो यहाँ पे ये रह जाएगा. नहीं, यहाँ से हमने बेसिकली इसमें सब्ट्रैक्शन कॉमन ले लिया है, सो वो यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस इज़ ऑल राइट, ये ठीक है.
सो इसी तरीके से अगर हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी जैसे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xy है, तो सेम हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1/xy से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बनेगा dy/y माइनस dx/x, और वो किसका वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस टर्म, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ y/x। सिमिलरली अगर हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिलेगा। अगर हमारे पास x dy प्लस वाई डी एक्स होगा, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लेंगे 1/xy, और उसका जो डिफरेंशियल होगा दिस विल बी दिस टर्म, दैट इज x dy प्लस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई xy, दिस विल बी d इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ xy। सिमिलरली अगर हमारे पास 1/xy होल रेजिंग पावर n है, सो उस केस में हमारा ये उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ -1 डिवाइडेड बाई n-1 इंटू xy रेजिंग पावर n-1। अगर हमारे पास x dx प्लस वाई डी वाई के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और उसमें जो हम है उसका जो डिफरेंशियल आएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दैट विल बी 1/2 डी डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमारे पास इस टाइप की टर्म होगी, उसमें nth वाला अगर हम उसमें लेंगे, सो उस केस में हमारा पास जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है वो ये बन जाएगी। So now we will solve one example on this inspection. So find integrating factor by inspection and solve y dx plus x into 1 minus 3x square y square dy is equal to 0. So सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन क्या है, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 माइनस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, हम इसको और किस तरीके से इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर रीराइट कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस टाइम्स 3x स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर into dy, this is equal to 0. So basically here there is one mistake, it is cube, it is 3x cube, so it is basically 3x cube, so it is यहाँ 3x cube, 3x क्यूब इंटू वाई स्क्वेयर। ओके, सो अब हमने क्या करना है, इसको अब हम इसका पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखना है। सो अब यहाँ पे हम क्या देख लेंगे कि जो ये एक्सप्रेशन ये वाला पार्ट है, ये किस टाइप का भी हमने पढ़ा था, अभी हमने जो बाय इंस्पेक्शन से देखिए। सो ये इंस्पेक्शन से ये इस टाइप से आ गया, दैट इज एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई का होल n, और इसका जो डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ -1 डिवाइडेड बाई दिस होल टर्म। सो हम यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे। आई कैन राइट हियर द एक्सप्रेशन x dy प्लस वाई डी एक्स suggests that, ये suggest करता है क्या, suggests that 1 divided by x y whole cube is an integrating factor, because यहाँ पे लिख सकते हैं last term requires n is equal to 3, because last term requires n is equal to 3. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे हम इसी फैक्टर से। सो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई होल क्यूब, वी गेट, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब, एंड यहाँ से हो जाएगा -3 टाइम्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, क्यूब क्यूब कैंसिल होगा, स्क्वायर और एक क्यूब कैंसिल होगा। सो एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3/y इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। सो इसकी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल था वो किसके इक्वल था, अभी हमने पढ़ा था, दैट विल बी इक्वल टू
मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ d इंटू -1 डिवाइडेड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म दैट इज -n-1 इंटू एक्स वाई रेजिंग पावर n-1। सो यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, और वी कैन राइट d ऑफ, ये आ गया -1 रेजिंग पावर n कितना है, यहाँ पे 3 था, सो इट विल बिकम 3-1, देन इट इज़ एक्स वाई इंटू 3-1 हो गया, दैट इज स्क्वेयर। सो साथ में आ जाएगा अदर टर्म का, इसका क्या बन जाएगा सेम इसी फॉर्म में, इट विल बिकम 3 टाइम्स d इंटू लॉग ऑफ y इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ये दो टाइप यूज़ हो गए, एक ये यूज़ हो गया और एक हमारे पास ये टर्म यूज़ हो गई है, ठीक है। सो नाउ हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो आई विल राइट इंटीग्रेटिंग वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सीधा मैं लिख देती हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास। सो ये इक्वेशन को मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, ये इक्वेशन आ जानी थी हमारे पास d ऑफ, और आई विल राइट d ऑफ -1/2 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वेयर, देन -3 टाइम्स d लॉग ऑफ y इक्वल टू 0। सो यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर -3 टाइम्स, इट विल बिकम लॉग ऑफ y इज इक्वल टू c। और माइनस बाहर ले लेते हैं और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिंपली लिख सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू -c, और उसको हम फिर एक कांस्टेंट से ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू कैपिटल C। सो दिस इज द आंसर। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, बाय इंस्पेक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। So next example is find the integrating factor by inspection and solve this term. So this is the differential equation. Also अब हमें इस equation को solve करना है। So देखिए इस equation को हम कैसे solve करेंगे। So यहाँ पे हमारे पास जो given differential equation है वो किसके equal है, that is equal to x into dx plus y into dy, then plus 4 times y cube into x square plus y square into dy, this is equal to 0। सो हमारे पास ये टर्म आ गई है। सो अब हम क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं द इक्वेशन और द एक्सप्रेशन x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई suggests that 1 divided by x square plus y square is an integrating factor, So because last term requires n-1, n equal to 1. Last term requires n is equal to 1. So यहाँ से हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको मल्टीपल करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 1 divided by x square plus y square. So we get, क्या आएगा हमारे पास वैल्यू, we get यहाँ से आएगा x dx plus y dy divided by x square plus y square plus 4 times y cube dy, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे भी करेंगे इसको मल्टीपल, और वो टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। सो अगेन ये किस फॉर्म में है, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे लिखते हैं, d इंटू दिस विल बिकम, ये मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, देन प्लस d ऑफ y रेज पावर 4, क्योंकि ये डेरिवेटिव किसका बनेगा, y रेज पावर 4 का इक्वल टू 0। अब जैसे ये लिखा है हमने 4y क्यूब, सो ये बेसिकली क्या है, ये तो हम अगर हम y4 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें मिलता है 4y क्यूब, तो सेम यही चीज़ लिखा है, ये डेरिवेटिव है इस टर्म का। सिमिलरली जो ये पूरा का पूरा पार्ट था, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो डेरिवेटिव है इस पार्ट का। सो अब हमने इंटीग्रेट करना है, सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग we get यहाँ से हमारे पास आएगा 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर
and plus y raised power 4, this is equal to c, which is the आंसर. सो बहुत सिंपल है. यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ उसको मल्टीपल कर दिया है तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई थी. सो यहाँ से खाली वाई क्यूब रह गया. फिर ये इसके ऊपर हमने वही फॉर्मूला लगाया जो हमने बाई इंस्पेक्शन से पढ़े थे. मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ. सो इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला लग गया जो हमने यहाँ पे ये पढ़ा था. अगर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की फॉर्म की इक्वेशन है उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा और उसका जो फॉर्मूला है मींस उसका जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट विल बी 1/2 डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो यही चीज़ हमने यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई की है. सो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो आप इस पे और क्वेश्चन सॉल्व करें. जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो नेक्स्ट इज़ द रूल टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पढ़ना है कि रूल्स क्या होंगे जिससे हमें फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो बेसिकली हमारे पास 5 रूल्स होते हैं. सो 5 रूल्स में से कैसे कैसे होंगे, अगर हमारे पास इस टाइप की फंक्शन होगा. सो इफ़ डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स होल डिवाइडेड बाई एन इज़ ए फंक्शन जो कि किसका फंक्शन होगा, खाली एक्स का. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से एफ ऑफ एक्स. उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से गिवन होगा, ई रेज पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स. सिमिलरली अगर यहाँ पे डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई होल डिवाइडेड बाई एम होगा और ये फंक्शन होगा खाली वाई का से एफ ऑफ वाई. उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा यहाँ पे क्या हो जाए, इंस्टेड ऑफ एक्स ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ वाई डी वाई. रूल थर्ड कहता है कि अगर हमारे पास m है वो किस फॉर्म में है, m इज इक्वल टू वाई इंटू एफ वन एक्स वाई और n किस फॉर्म में है, x इंटू एफ टू एक्स वाई. उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा 1/mx माइनस एन वाई. सिमिलरली रूल फोर्थ में ये है कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगी, m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 जो कि मीन्स होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए. सो इन x एंड y उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो हमने क्या लेना है, 1 डिवाइडेड बाई mx प्लस ny. एंड रूल फिफ्थ में है कि हमारे पास अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होगी दैट इज एक्स रेज पावर m y रेज पावर n इंटू ए वाई डी एक्स प्लस बी एक्स डी वाई प्लस एक्स रेजिंग पावर m डैश y रेजिंग पावर n डैश इंटू ए डैश वाई डी एक्स प्लस बी डैश एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0. सो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लेंगे एक्स रेजिंग पावर h और y रेजिंग पावर k. सो वायर जो हमारे पास ये टर्म्स होंगी वायर m प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाई a this is equal to n plus k plus 1 divided by b and m dash plus h plus 1 divided by a dash this is equal to n dash plus k plus 1 divided by b dash. So अब इन जो ये 5 रूल्स हैं हम इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉर रूल 1 के लिए सॉल्व 2x log x माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस 2y डी एक्स इक्वल टू 0. सो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो सेम हमने क्या करना है, फर्स्ट रूल को अप्लाई करना है. तो मींस फर्स्ट रूल में क्या था, हमारा पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था दैट वाज उसमें हमने जैसे लिया था ई रेज पावर और एफ ऑफ एक्स डी एक्स के. सो यहाँ पे हमने वही चीज़ करना है. सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे. सो आई विल राइट हियर m क्या है इसमें. सो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ. यहाँ पे मेरे पास m जो है वो किसके इक्वल है, आई विल राइट इट एज आई कैन टेक m डी एक्स. सो m डी एक्स होता है. सो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे m डी एक्स प्लस n डी वाई इक्वल टू 0. सो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट m हो जाएगा. तो मीन्स m किसके इक्वल आएगा 2y. सो n किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी 2x इंटू लॉग ऑफ x माइनस एक्स वाई. सो ये हमारे पास बन गया. सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव देखना है दैट इज डेल m बाई डेल y. वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 2 आएगा. इसी तरीके से डेल n बाई डेल x किसके इक्वल हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस y. सो ये हमारे पास बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा और वो मैंने डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिख दी है. सो रूल 1 ये कहता था कि हियर हम लिख सकते हैं हियर डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x होल डिवाइडेड बाई n. सो वो किसके इक्वल होगा, डेल m बाई डेल y वो कितना था 2. सो साथ में क्या है माइनस टाइम्स 2 इंटू लॉग ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस लॉग ऑफ x
देन इट इज़ प्लस वाई डिवाइडेड बाय ये इसके साथ में क्या है, हमने डिवाइड किसे करना है इसको, n से। सो n कितना है, n था हमारे पास 2x log ऑफ x माइनस एक्स वाई। सो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल हमारा डायरेक्टली लिख देती हूँ, इट विल बिकम माइनस टाइम्स 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2x log ऑफ x माइनस एक्स वाई। सो इस केस में हम क्या करेंगे, सो आई विल राइट यहाँ पे डायरेक्टली हम ये काम कर सकते हैं कि x हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन हम ले सकते हैं। एक मिनट हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। सो यहाँ से डिनोमिनेटर से x कॉमन आ जाएगा, तो आई विल राइट माइनस 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x आएगा बाहर, ये आएगा 2 टाइम्स log ऑफ x, इट इज़ log ऑफ x, देन माइनस वाई, देन माइनस वाई, ये हमारे पास टर्म आ गई। सो अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये टर्म बेसिकली बन जाएगी, इस केस में ये हो जाएगी, नाउ इट विल बिकम 1/x इंटू ये हमारे पास खाली -1/x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप माइनस ले लीजिए तो ये वाली टर्म और ये वाली होल टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे खाली -1/x होगा। सो हम इसको क्या लेंगे, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। सो ये हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो therefore आई विल राइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू, इस केस में कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन e रेजिंग पावर f ऑफ x इंटू डी एक्स। सो ये किसके इक्वल आएगा, e f ऑफ x हमने कितना निकाला, -1/x इंटू डी एक्स, जो कि हो जाएगा e इंटू माइनस लॉग ऑफ x, और इट विच इज इक्वल टू e इंटू लॉग ऑफ x रेजिंग पावर -1, सो विच इज इक्वल टू x इनवर्स एंड विच इज इक्वल टू 1/x। सो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीपल करेंगे। सो वी विल राइट मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1/x वी गेट। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट को हमने 1/x से मल्टीपल करना, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, मैं उसको यहाँ पे फिर से एक बार लिख देती हूँ। सो इट वॉज 2y dx then plus 2x log of x minus xy into dy, this is equal to 0। सो अब हम इसको 1/x से मल्टीपल कर देंगे, तो दिस मीन्स यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सो हमने इसको भी मल्टीपल कर दिया यहाँ से। सो अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 2y/x इंटू डी एक्स, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो वो x और जो डिनोमिनेटर में x है वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। So I will write it as y into dy divided by x. This is equal to 0. This x gets cancelled. So 2y/x into dx plus 2 log of x minus y into dy. This is equal to 0. अब हमने क्या करना है, ये टर्म आ गया, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो सीधा लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 2y/x इंटू डी एक्स, देन इट विल बी प्लस, यहाँ से हमारे पास टर्म आ जाएगी। हाँ, अब जब इसका सोल्यूशन निकालना है तो हमें क्या लेना है, अब ये कौन से फॉर्म में आ गई, ये तो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। अब इस केस में हमने यहाँ पे पता है कि हमें क्या लेना है, वो टर्म और जो अदर टर्म जिसमें क्या होंगे हमारे पास जो x की टर्म्स नहीं होगी, तो यहाँ पे बेसिकली डायरेक्टली हम लेंगे, दिस विल बी y माइनस वाई इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू सी। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2y इंटू लॉग एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 which is equal to constant c. So therefore I will write here that 2 times y into log of x minus y square by 2 is equal to c is the answer. सो इस तरीके से आपने रूल 1 पे क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने। सो अब नेक्स्ट हम रूल 2 पे क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं।
सो एग्जाम्पल है हमारे पास, सॉल्व वाई रेज पावर 4 प्लस 2y डी एक्स प्लस एक्स वाई क्यू प्लस 2y4 माइनस 4x dy इज इक्वल टू 0। तो सेम यहाँ पे हमें ये रूल 2 के लिए कर रही हूँ मैं सॉल्व, तो यहाँ पे पहले m लिख लूँगी मैं, m हो गया y रेज पावर 4 प्लस 2y एंड n हमारे पास आ गया एक्स वाई क्यू प्लस 2y रेजिंग पावर 4 माइनस 4x। सो इसको हमने करना है m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर। सो आफ्टर दैट हमारे पास m की वैल्यू ये आई और n की वैल्यू ये, यहाँ से हम डेल m बाई डेल y निकालेंगे विच विल बी 4y क्यूब प्लस 2। सिमिलरली डेल n बाई डेल x निकालेंगे विच विल बी y क्यूब माइनस 4। सिमिलरली हमारे पास जो सेकेंड रूल कहता है डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y होल डिवाइडेड बाई m, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, डेल n बाई डेल x हो गया y क्यूब माइनस 4 माइनस डेल m बाई डेल y हो गया 4y क्यूब माइनस 4y क्यूब माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई n है आपके पास एक्स वाई क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x। सो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सॉरी हमें n नहीं m है, सो यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। सो दिस विल बी बेसिकली n, m है हमारे पास 4y क्यूब प्लस 2। सो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास आएगा 4 में से 8 विल गेट 1 विल गेट कैंसल्ड, सो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा माइनस 3y क्यूब, देन इट विल बिकम 4 एंड दिस विल बी माइनस 6, ओके, होल डिवाइडेड बाई 4y क्यूब देन प्लस 2। सो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा y क्यूब प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस केस में, इट इज़ बेसिकली just a second, it is not 4y cube, this is my mistake, again my mistake, so it is basically y raising power 4 plus 2y, so it is again y raising power 4 plus 2y। so यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y common, so I will take y common, सो यहाँ से हमारे पास y जब कॉमन आ गया अंदर आएगा y क्यूब प्लस 2। सो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो अभी हमने निकालना है उससे पहले जो टर्म है वो हमारे पास आई माइनस 3/y। इसको हम क्या लेंगे f ऑफ y, तो मीन्स ये जो है ये फंक्शन है किसका, y का। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है, ई रेज पावर, वहाँ पे था एफ डी एक्स, तो अब यहाँ पे लेंगे एफ वाई डी वाई। सो उस केस में ये हो जाएगा ई रेज पावर माइनस 3/y इंटू डी वाई। सो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेज पावर माइनस 3 लॉग ऑफ वाई, विच विल बिकम डायरेक्टली आई विल रिक ई रेज पावर लॉग ऑफ वाई रेजिंग पावर माइनस 3, और it will become y raising power माइनस 3 और it is 1/y क्यूब। सो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट के साथ इसको मल्टीपल करना है। सो ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सो मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन फर्स्ट बाय 1 डिवाइडेड बाय y क्यूब वी गेट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से डायरेक्टली लिख लेती हूँ। सो y क्यूब से जब इसको मल्टीपल करते हैं नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। सो इसको हमने किसके साथ करना है डिवाइड, इसको हमने डिवाइड करना है 1/y क्यूब्स के साथ। सो होल को किया हमने y क्यूब के साथ डिवाइड। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी और वी कैन राइट इट विल बिकम y प्लस 2 टाइम्स y स्क्वेयर in one bracket, then in other bracket it will be x plus 2y minus 4x divided by y cube into dy equal to 0। सो अगेन अब ये क्या है, वो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस केस में अब हमें पता ही है इसका सोल्यूशन कैसे लेते हैं, देन m दैट इज y प्लस 2 टाइम्स 2/y स्क्वेयर इंटू डी एक्स टेकिंग y एज कॉन्स्टेंट, देन प्लस टर्म्स नॉट कंटेनिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉट कंटेनिंग x, तो इसमें ये भी x में आ गया, ये भी x, तो खाली 2y इंटू डी वाई आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू c। सो यहाँ से हमारे पास आएगा टेकिंग y कांस्टेंट, ये हमारे पास ध्यान रखिए ये कांस्टेंट है इसमें। सो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी y, देन इट विल बी x प्लस 2/y स्क्वेयर इंटू x
it will become 2 by y square into x, then it is 2 times y square by 2, which is equal to c. So from here I can write x, taking x common, y plus 2 by y square plus y square, this is equal to c. So this is the answer. So इस तरीके से आपने रूल सेकंड पे क्वेश्चन में सॉल्व करने. अब थर्ड पे कर लेते हैं. सो इन थर्ड रूल में हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमने इसका सेम इसके ऊपर इसका हमने इसको एग्जैक्ट बना के इसकी सोल्यूशन निकालना है. तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ. हमारे पास इक्वेशन थी ये टर्म, सो आई विल राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1. तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग फर्स्ट बाय, हम इसको करेंगे एक्स वाई से. वी गेट, यहाँ से देखिए हम सबसे पहले क्या आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे एक्स आई से, ये हमारे पास बनेगा वाई इंटू 1 प्लस 2xy इंटू डी एक्स, देन प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई विच इज इक्वल टू 0. सो नेम इट एज इक्वेशन सेकेंड. सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया. यहाँ से हम इसको अगेन कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से. सो एम आ जाएगा हमारे पास, हम इसको लिख देते हैं कि ये एक टर्म बन गया हमारे पास फंक्शन. सिमिलरली एन जो होगा वो किस टाइप का फंक्शन होगा, एक्स इंटू एफ टू एक्स वाई. ओके, सो यहाँ से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, तो किस फॉर्म में लिखना है, दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई एम एक्स माइनस एन वाई. ये थर्ड रूल में हमने पढ़ा था. तो सिंपली अब वही चीज़ हमने लिखनी है. तो m कितना है यहाँ पे, m वाली टर्म देखें, m वाली टर्म है हमारे पास, यहाँ से देखें वो हमारे पास आ जाएगी. सो आई विल राइट हियर m है यहाँ पे अब y इंटू 1 प्लस 2xy और n है हमारे पास x इंटू 1 माइनस एक्स वाई. सो हमने क्या करना है, m को x के साथ मल्टीपल करना है. तो आई विल राइट एक्स वाई इंटू 1 प्लस 2xy. सिमिलरली माइनस n को y के साथ मल्टीपल करना है. तो यह आएगा एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई. सो ये हमारे पास आ गया. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. सो अब हमने ये जो है इसको क्या करना है, इसको इक्वेशन सेकेंड के साथ क्या करना है, मल्टीपल करना है. सो आई विल राइट मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो वहाँ से ये एग्जैक्ट बन जाएगा. तो जब हम इसको मल्टीपल करेंगे वी हैव एन एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर वाई प्लस 2/3x, then other into dx, then it will be 1/3xy square minus 1/3y into dy which is equal to 0. सो अब यहाँ से हमारे पास ये एग्जैक्ट इक्वेशन है. सो हमने सिंपल इसका सोल्यूशन लेना है. तो सोल्यूशन निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, एम डी एक्स हो गया ये वाली पूरी क्वांटिटी, दैट इज 3x स्क्वायर वाई प्लस 2/3x इंटू डी एक्स. देन इट विल बी, सो टेकिंग y एज कांस्टेंट, इसमें y कांस्टेंट है. देन प्लस टर्म्स नॉट कंटेनिंग x. सो फर्स्ट टर्म नहीं आएगी, सिर्फ सेकंड टर्म आएगी. ये आ जाएगा 1/3y इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू c. सो अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सो इसकी आफ्टर इंटीग्रेशन, इसका मैं डायरेक्टली अब आंसर लिख रही हूँ. सो इट विल बिकम -1/xy इंटू प्लस 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस log ऑफ y is equal to some constant, say b. So this is the answer. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑन रूल 4. सो सेम यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है. सो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी रीराइट कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0. सो नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट. सो अगेन एम हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एन हमारे पास आ गया माइनस टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर, डेल m by del y will be
हम यहाँ पे इसको तो ऑलरेडी हमें बाद में निकालना है। सो यहाँ पे हम अब डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, mx प्लस एन वाई। सो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, सो यहाँ से हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई। सो उस केस में क्या हो जाएगा, m हमारे पास कितना है, x, साथ में x से मल्टीपल करना है, सो ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को किससे मल्टीपल करना है, साथ में x के साथ, देन इट विल बी प्लस n दैट इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और उसको मल्टीपल करना है y के साथ। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट x रेजिंग पावर 1 डिवाइडेड बाई x रेजिंग पावर 4। सो अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीपल करना है, इक्वेशन फर्स्ट से। सो multiplying first by 1 by x raised power 4, we get, हमारे पास क्या आएगा, सो वी गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाई वाई 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर 4, then dx minus xy square divided by x4 into dy, this is equal to 0। सो यहाँ से इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, और आई विल राइट इट एज, इट विल बिकम 1 बाई एक्स प्लस वाई क्यूब बाई एक्स रेजिंग पावर 4 इंटू डी एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्या आ गई, एक एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई। अब हमें इसका सोल्यूशन पता है कैसे लेना होता है, दैट इज एम डी एक्स, एम की जगह पे हो गया 1 बाई एक्स प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर 4 इंटू डी एक्स, और टेकिंग वाई क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट है, ये याद रखना है आपको हमेशा, प्लस टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स। तो यहाँ पे टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स है नहीं, तो वो 0 आ जाएगा। सो आई विल राइट एट 0, दिस इज इक्वल टू सी। सो आफ्टर integrating this term we get the answer log of x minus y cube divided by 3x cube which is equal to some constant c। so this is the answer। so अब लास्ट जो हमारे पास लास्ट रूल है उसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सो जो हमारे पास रूल 5 था उसमें हमें किस टाइप की एक्सप्रेशन होनी चाहिए थी, एक्स रेज पावर m y रेज पावर n देन a y dx प्लस बी एक्स इंटू डी वाई देन प्लस एक्स एम डैश वाई एन डैश a डैश वाई डी एक्स प्लस बी डैश एक्स डी वाई दिस इक्वल टू 0, b डैश दिस dy इक्वल टू 0। सो आई विल राइट दिस dy इज इक्वल टू 0। सो अब हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में, अबो इक्वेशन को हमने क्या करना है, इसी फॉर्म में बनाना है। तो उसके लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। सो आई विल राइट, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई विल राइट इट एज वाई स्क्वेयर so it is y square, then it is y dx plus 2 times x dy 2 times x dy plus x square then minus 2y dx minus x dy, this is equal to 0। सो हम बेसिकली इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बड़ा सिंपल है इसको ब्रेक करना। सबसे पहले ये x वाली टर्म्स जैसे dx है इन सबको आपस में मल्टीपल करो, dx के साथ इसको y के साथ, फिर x और y वाली टर्म्स एक में ले लो इसी तरीके से, और जो हमारे पास जैसे y क्यूब था उसको ब्रेक कर दो, वहाँ से 2 टर्म से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे y स्क्वायर था और ये y क्यूब था तो यहाँ से y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर था और अगली टर्म से यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी। ये कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं इजीली। सो अब यहाँ पे हमने देखना है हमारे पास m किसके इक्वल है। सबसे पहले हम इसके वैल्यूज देखेंगे। सो आई विल राइट हियर m इज इक्वल टू 0। m हमारे पास 0 आ गया। फर्स्ट देखो x की टर्म के ऊपर है नहीं कुछ, तो m 0 है। n हमारे पास 2 आ गया। सिमिलरली a मेरे पास 1 है, b किसके इक्वल है, वो 2 है। सो m डैश जो है वो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है। n डैश किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। a डैश है हमारे पास -2 के इक्वल, और b डैश है -1 के इक्वल। सो ये हमारे पास आ गया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। सो अब हमारे पास हमें पता है इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी होती है, दैट इज इक्वल टू m प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाई a, दिस इज इक्वल टू n प्लस
k plus 1 divided by b, and दूसरी साइड से होगा m dash plus h plus 1 divided by a dash, and this is equal to n dash plus k plus 1 divided by b dash. so इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे m n की, so ये बनेगा 0 plus h plus 1 divided by 1, this is equal to 2 plus k plus 1 divided by 2, एंड ये बन जाएगा आपके पास 2 plus h plus 1 divided by -2, and this will become 0 plus k plus 1 divided by -1. so after solving यहाँ से मेरे पास h की वैल्यू जो आएगी, सो आफ्टर इसको जब हम सॉल्व करेंगे h की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी, h और h की वैल्यू 1 आ जाएगी और k की वैल्यू भी मेरे पास 1 आ जाएगी. सो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इस केस में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है x रेज पावर h एंड y रेजिंग पावर k. सो यहाँ से बनेगा x रेज पावर 1 y रेजिंग पावर 1 विच इज इक्वल टू एक्स वाई. सो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीपल करना है इस एक्स वाई से. सो जब हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीपल करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी उसको हम मल्टीपल करेंगे किससे? एक्स वाई से. सो यहाँ पे हमारे पास आएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by this integrating factor. so we get, हमारे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, so it will become x into, ये हमारे पास बन जाएगा x into y raising power 4 minus 2 times x cube y square into dx, and other term will be 2x square y cube minus x raising power 4 y into dy, this is equal to 0. सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे. सो दिस इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन. ये हमारे पास क्या है, दिस इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन. सो सिंपली हमें पता है इसका इंटीग्रल कैसे निकालना होगा, दैट इज इंटीग्रल एम डी एक्स में होगा एक्स वाई रेजिंग पावर 4 माइनस 2x क्यूब इंटू वाई स्क्वेयर होल डी एक्स, टेकिंग वाई कॉन्स्टेंट और प्लस टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स. मगर इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है तो ये वाला साइड 0 हो जाएगा. सो डायरेक्टली दिस इज इक्वल टू सी. सो आफ्टर वाई ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट है. सो आफ्टर इंटीग्रेशन जो हमारे पास आंसर आएगा, आई एम राइटिंग द आंसर, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस इंटू वाई स्क्वेयर देन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू सी. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस question. So hence we have solved all the examples, we have solved some examples on these 5 rules. So thank you.